Hello, good morning everybody. Welcome to fifth video on magnetic effects of electric current. So in this video, we are going to discuss about the magnetic field that is developed due to circular current carrying conductor at an axial position. In the previous video, that is in the fourth video, I have derived the expression for magnetic field at the center of the circular current carrying loop and related problems. But in this video, we are going to find out the magnetic field at the axial position of the circular current carrying loop. तो चलो शुरू करते हैं. So before starting, I am Lieutenant Duti Krishna Khandwal, lecturer in physics. आओ स्टार्ट करते हैं. So ये मेरा सर्कुलर लूप है. So this is the circular loop in which current I is flowing in this direction. Suppose I is the current in the circular loop and this is the center and its radius, suppose it is taken as R, and we are now interested. देखो ये जो सेंटर में ऑलरेडी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं. At this center, due to this current carrying loop, the magnetic field is, याद करो इसको, B at the center is equal to mu naught I divided by 2R. Here capital R, that's why it is mu naught I divided by 2R. ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम फोर्थ वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. ओके, आई हैव गिवन यू टू मेथड्स. दोनों मेथड आपको मैंने सिखाया. इस वीडियो को प्लीज इसको देखो. ओके, तो चलो अभी हम एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे. सपोज दिस इज द पोजीशन ऑन द एक्सियल पॉइंट and suppose that point of observation is at a distance of x from the center of the circular loop. circular loop का center से ये axial position का distance कितना है? x. so at a distance x we are to find out what is the magnetic field. यहाँ b कितना होगा हम निकालेंगे. ओके, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. इसको p नाम देते हैं. P is my observation point. तो बायट-सावर्ट्स लॉ को हम यूज करेंगे. तो बायट-सावर्ट्स लॉ को यूज करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली यू जस्ट इमेजिन दिस लूप, दिस करंट कैरिंग लूप इज नॉट ऑन द बोर्ड. इट इज लाइक दिस. ओके, दैट मींस द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड. यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा. Because this loop is not on the board, that is why it is appears like a ellipse. ये ellipse नहीं है, ये सर्कल है. ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे. ओके, ये बाहर आता है ऐसे, अंदर जाता है ऐसे. तो आपको मैं यहां दिखा दूं, यहां करंट बाहर आ रहा है, ये नीचे करंट अंदर जा रहा है ऐसे. ये बोर्ड से यहां करंट बाहर आ रहा है और यहां नीचे जा रहा है अंदर. ओके, ऐसे. दैट मींस द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड. क्लियर? सो यू हैव टू इमेजिन, एंड आई एम कंसीडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट, इट्स लेंथ सपोज dl. if I will multiply a factor that is I, the current that flows in this loop, it will be a vector quantity which is called your current element vector. You just imagine this current element vector is perpendicular to this board. You see, this is my circular loop. This is my circular loop, and I have considered an element just at the topmost point. So that's why the current element, the direction of the current element is tangential towards you. Okay, so this is the
direction of the current element vector, and from this point I am just drawing a straight line to the point of observation. Okay, so now you can see this is my r vector. This is my r vector whose magnitude is equal to r square plus x square का root over. So r square, capital R square. So r square plus x square का power half. Okay, you can see from this right angle triangle, r square plus x square का half. This is my hypotenuse, which is my r vector. Now you see, this is my current element vector perpendicular to the board, and this is my r vector. You see, this is my r vector. Now you can see it is 90 degree to each other. 90 degree. It is 90 degree like this. You see, this is the situation. Current is flowing in this direction. Okay, that's why it is tangential, and this is the inclined. Now you can see the current element vector and r vector subtends an angle of 90 degree. Clear? So here theta is equal to 90 degree, but it is not appears so. ये दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे डायग्राम से, लेकिन 3 डायमेंशनली आपको एज्यूम करना पड़ेगा. एक्चुअली इसको आपको थिंक ओवर द सिचुएशन. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ऐसे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरा करंट एलिमेंट वेक्टर, ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर मेरा बोर्ड के ऊपर नहीं है. करंट एलिमेंट वेक्टर ऐसा है, करंट एलिमेंट वेक्टर ऐसा है, और ये मेरा आर वेक्टर है. दैट्स व्हाई इट इज 90 डिग्री. इट इज 90 डिग्री. जस्ट आई हैव शोन यू. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये तो 90 डिग्री होगा, और बाकी इसको एक काम करते हैं, इसको फाई नाम रखते हैं, इसको फाई नाम रखते हैं. यहां तो मेरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ प्लीज टेल मी, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, according to Biot-Savart's law, the magnetic induction due to the small element at this point of observation, dB equal to mu naught divided by 4 pi IDL cross r vector divided by r cube in vector form. फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये जो एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ, ये जो एलिमेंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका डायरेक्शन हम देखेंगे. ओके, सो डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, आइडियल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल देखो कैसे हम लगाएंगे. तो ये मेरा आइडियल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और यहां मेरा देखो ये आर. तो क्या करेंगे, देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको. ये मेरा करंट एलिमेंट वेक्टर, और ये मेरा, देखो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन. नाउ यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन. ऐसे ऐसे इंक्लाइन हो गए, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस आइडियल वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं. देखो ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, इसलिए ऐसे होगा डायरेक्शन. ओके, बी केयरफुल. सो ये पी पॉइंट में इसका डायरेक्शन यहां होगा, इधर होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी. ओके, सो ये मेरा आइडियल और ये मेरा आर, ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. क्लियर? तो कीप इन माइंड. सो यहां क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन तो हो गया. सो डायरेक्शन के बाद इसका मैग्नीट्यूड हम अगर निकालेंगे, सो डी बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल sin theta. So theta is equal to, you see, 90 degree
divided by r square. Okay, so this is the magnitude. So ideal r sin theta divided by r cube, एक r कैंसिल हो जाएगा तो r square रहेगा. तो दिस इंप्लाइज, इसको हम क्या करेंगे, db लिखेंगे. सो db इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई IDL, ये 1 हो गया, डिवाइड बाई r square. So this is the magnitude of magnetic field at the point of observation P due to the small element I have considered. But I want to find out the resultant magnetic field at that observation point, which is on the axial line. Clear? तो अभी क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले देखो, इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. अगर ये फाई होगा तो देखो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा. ओके, आप देख सकते हो. देखो ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है. ये अगर फाई होगा तो ये 90 माइनस फाई होगा. तो फिर से ये देखो 90 डिग्री, ये 90 माइनस फाई है तो ये अगेन फाई होगा. तो ये होगा मेरा dv cos फाई. ये वर्टिकल कंपोनेंट dv cos फाई होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा dv sin फाई. क्लियर? तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो, जस्ट एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन आई विल कंसीडर ए सिमिलर एलिमेंट. Just at the diametrically opposite position, I will consider a similar element, but its direction will be into the board. यहां बोर्ड से बाहर होगा. देखो आइडियल का डायरेक्शन बाहर, लेकिन यहां आइडियल का डायरेक्शन का क्या होगा, अंदर होगा. बिकॉज करंट इज जस्ट एंटरिंग द बोर्ड ओवर हियर. क्रॉस मार्क इसीलिए दिखाया, यहां डॉट दिखाया बाहर, यहां अंदर. ठीक है, तो ये एलिमेंट यहां जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो कहां होगा, इधर होगा. ये जो आइडियल एलिमेंट और ये जो R होगा, यहां भी R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ होगा. इसको भी मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा. तो ये मेरा होगा dB, मैग्नीट्यूड सेम होगा. ये देखो मैग्नीट्यूड इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का सेम होगा. तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, ये भी फाई होगा. तो ये हो जाएगा dB cos फाई, ये हो जाएगा dB sin फाई. नाउ यू कैन सी for every element on this circular loop there is an element just at the diametrical opposite position for which this vertical components dB cos phi will cancel each other's effect. देखो ये एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, dB cos phi इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट. और ये एलिमेंट का dB cos phi कैंसिल हो जाएगा. ये एलिमेंट का सो जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट में जो एलिमेंट्स है उनके लिए जो dB cos phi क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. पूरा dB cos phi, ये देखो ये dB cos phi पूरा ये dB cos phi पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे. लेकिन हर एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, dB sin phi सेम डायरेक्शन में रहेगा. तो resultant field at this point of observation will be equal to, so thus resultant field at P which is equal to B will be equal to integration over dB sin phi. देखो dB sin phi का इंटीग्रेशन होगा. क्लियर? क्योंकि dB cos phi कैंसिल आउट हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इंप्लाइज B is equal to integration over dB. So dB is equal to mu naught divided by 4 pi
आई डी एल, ये मेरा साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन। इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो जो जो कांस्टेंट है इसको बाहर हटाते हैं। सो बी इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, कांस्टेंट क्वांटिटी, आई इज कांस्टेंट, योर आर स्क्वायर। देखो ये आर हर एलिमेंट के लिए आर कांस्टेंट रहेगा। देखो ये आर, ये आर, ये आर, जो भी ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, पूरा कोनिकल अपीयर करेगा, इसीलिए ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो साइन फाई भी कांस्टेंट है। देखो डायग्राम में साइन फाई भी कांस्टेंट रहेगा, ये फाई, ये बी फाई, तो साइन फाई कांस्टेंट, ओनली इंटीग्रेशन ओवर डीएल। तो इंटीग्रेशन ओवर डीएल, तो क्या लिमिटिंग केस होगा, 0 से 2 पाई आर तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये साइन फाई इसको रहने दो, साइन फाई इधर लिखते हैं। साइन फाई dl का जो इंटीग्रेशन l होगा 0 से 2 पाई r, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से पहले देखो एक काम करते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। सो आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर, इसको रहने देते हैं 2 पाई आर, इसको कैंसल अभी नहीं करेंगे, इसको रहने दो। तो बाकी साइन फाई, ये डायग्राम को देखो, यहां से आपको मिलेगा साइन फाई इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा x डिवाइड बाई हाइपोटेनस, सॉरी हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो हाइट देखो ये कितना है आपका, r डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है, r, स्मॉल r। ओके, r डिवाइड बाई r। ओके, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये r स्क्वायर है, स्मॉल r स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा, प्लीज टेक केयर। सो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई 2 पाई r, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। देखो r स्क्वायर हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो अभी r की जगह क्या करेंगे हम, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। तो हमको मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाफ है, यहाँ क्यूब है, तो 3/2 हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज माई एक्सप्रेशन। इसको अगर देखेंगे तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसको, डिफरेंट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। चलो देखो, तो इसको क्या करेंगे, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। तो इसको 2 पाई भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ये जो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया हो जाएगा। एरिया अगर इसको हम नाम रखेंगे एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो इसका एरिया, इसका जो ये एरिया, इसको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2, ये देखो ये एक टर्न के लिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 1 टर्न। अगर ये आपका जो सर्कुलर लूप अगर एक टर्न होगा तो ये मेरा एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, अगर यहां सर्कुलर लूप में अगर आपका n टर्न्स होगा, फॉर n टर्न्स, देखो यहां लिखेंगे हम फॉर
n टर्न्स। ओके, कितना हो जाएगा इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, इसको 2 को बाहर रखते हैं, n i पाई r स्क्वायर, इसको हम s लिखते हैं, NIS डिवाइडेड बाय ओके r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। एक्चुअली दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर n टर्म्स। So magnetic field or magnetic flux density or magnetic induction at an axial position due to the circular current carrying loop will be equal to mu naught by 4 pi 2 NIS divided by r square plus x square power 3/2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ पाई तो एरिया में चला गया। चलो इसको रहने दो। देखो हम थोड़ा केसेस कंसीडर करेंगे। केस वन में हम देखेंगे, अगर हम x को 0 कर देंगे, सो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये x अगर 0 हो जाएगा तो P पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इधर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर x इज इक्वल टू 0 अगर यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां से देखो, यहां से भी हम ला सकते हैं। तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, तो देखो I 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई x 0 हो गया, x अगर 0 हो गया तो r स्क्वायर का पावर 3/2, तो r क्यूब हो गया। देखो पाई को पाई कैंसिल कर दो, 2 जा, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2r। देखो तो B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2r, जो एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी 4th वीडियो में डेरिवेशन कर चुके हैं। We know this, okay? So magnetic field at the center of the circular current carrying loop is equal to mu naught I divided by 2r, where r is the radius of the circular loop। तो हमारा डेरिवेशन ठीक है। इसमें से पता चल रहा है कि हमारा डेरिवेशन ये जो हुआ है ये एक्यूरेट है, हमको कंफर्मेशन हो गया कि डेरिवेशन ठीक है करके। चलो एक काम करते हैं, और भी एक मैं बढ़िया पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। देखो मैं ये आपको और एक बढ़िया पॉइंट बताना चाहता हूं, वो क्या है, देखो सो केस टू में इफ x इज मच ग्रेटर देन r, ये कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। देखो दिस x, ये जो x अगर बहुत बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, देन द b becomes b equal to mu naught divided by 4 pi 2 times NIS divided by r स्क्वायर। इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज x इज मच ग्रेटर देन r, तो x स्क्वायर इन कंपैरिजन टू x स्क्वायर r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, इसको s रखेंगे, तो x क्यूब रखेंगे, x क्यूब। r को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू x। तो आपको याद करना पड़ेगा, आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, अगर ये मेरा एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, मैं बता रखा हूं, ये मेरा एक मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट है। सो इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस, so this is the magnetic axis, suppose this is the center O, okay, इसका सपोज मैग्नेटिक मोमेंट सपोज m,
ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू सपोज m, तो r डिस्टेंस में अगर एक पॉइंट इधर है, तो ये जो बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सियल पोजीशन P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, कितना होगा 2m डिवाइड बाई, अगर इसको हम x रखेंगे, इसको x नाम देंगे, तो x क्यूब होगा। ये एक्सप्रेशन हम आगे डिराइव करेंगे, मैग्नेटिज्म में हम इसको डिराइव करेंगे, ओके। लेकिन इसको याद रखो, अगर ये एक्सप्रेशन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, देखो इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, तो देखो पूरा सिमिलर दिख रहा है। m के जगह NIS है, सो अगर इसको मैं नाम दूंगा A, इसको नाम दूंगा B, सो कंपेयरिंग इक्वेशन A and B, we get m is equal to NIS. It's a very important conclusion निकल के आया। So प्लीज कीप इन माइंड, अगर इसको हम वेक्टोरियली लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, बट n नंबर ऑफ टर्न्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज जस्ट ए नंबर, इट इज प्योरली ए नंबर, एंड I is a scalar quantity, current is a scalar quantity, and the direction of the magnetic moment is equal to along the direction of the area vector. And we all know from Gauss's law जब पढ़ रहे थे, एरिया वेक्टर को मैंने डिफाइन किया था। सो एरिया वेक्टर, सपोज ये आपका एरिया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू दी एरिया होगा, ओके। तो अभी हमको कंक्लूजन मिला कि करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल फॉर ए डिस्टेंट पॉइंट। जब भी ये x is much greater than in comparison to the radius of the circular current carrying loop, then this current carrying loop behaves like a magnetic dipole. ये पूरा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल ये सर्कुलर करंट कैरिंग करंट बिहेव करेगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट NIS होगा। N is the number of turns, I is the current flowing in the loop, and S is the area, pi r square, the area, surface area. It's a very important conclusion. इसको हम बार बार आगे यूज करेंगे, इसको प्लीज माइंड में बसा लो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंक्लूजन हमको मिला, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका भी नॉर्थ पोल इसका भी साउथ पोल है क्या? यस, ये अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली इसका नॉर्थ पोल भी होगा, इसका साउथ पोल भी होगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हम कैसे एसेप्टेन करेंगे? तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को। ये जो थंब जिधर रहेगा वो होगा आपका नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। तो इधर मेरा नॉर्थ पोल, यहां से मेरा साउथ पोल। और भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, और एक ट्रिक आपको मैंने दूंगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एसरटेन करने के लिए। देखो, जिधर देखो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को मैं अगर फ्लैट इसके ऊपर रख दूंगा, इसके बोर्ड के ऊपर अगर रख दूंगा, सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग सपोज इन दिस डायरेक्शन, तो व्हिच साइड, पीछे का साइड या आगे का साइड, कौन सा इसका नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल, इसको एसरटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखो ए से लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे। देखो अगर मैं एस लिखूंगा, यहां अगर एस में लिखूंगा, देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, तो ये मेरा साउथ पोल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर नॉर्थ लिखना पड़ेगा। देखो नॉर्थ लिखो, पूरा सेम हो जाएगा। देखो
एन लिख लो, यहां एरो लगा दो और यहां एरो लगा दो। देखो ये जो मैंने एन लिखा, ये एन का एरो और आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो यहां मेरा नॉर्थ पोल है। ये एक ट्रिक है। ओके, सो इधर मेरा नॉर्थ पोल है, ऐसे भी कर सकते हो। और जस्ट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, आपका जो पाम को कर्ल करोगे, ये फिंगर्स को कर्ल करोगे। जिधर आपका थंब रहेगा वो साइड होगा आपका नॉर्थ पोल। तो जहां से मैं देख रहा हूं, ये थर्ड ट्रिक है मेरा, जहां से देखो मैं देख रहा हूं, मेरे को अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस तरफ मेरा नॉर्थ पोल होगा। और अगर मैं पीछे जाके इसको देखूंगा, ऐसे दिखूंगा, पीछे से अगर दिखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखो सेम हो रहा है। तो ये मेरा साउथ पोल, उधर मेरा सॉरी ये मेरा नॉर्थ पोल, उस तरफ मेरा साउथ पोल। क्लियर? सो ये एक ट्रिक है। सो जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो साइड होगा नॉर्थ पोल, और जहां से आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो होगा आपका साउथ पोल। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ए करंट कैरिंग लूप behaves like a magnetic dipole having magnetic moment NIS, where N is the number of turns in the circular coil and I is the current that flowing in the coil, and S is the area, surface area, pi r square। क्लियर हो गया? चलो, सो इस डिस्कशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सो ये आपका बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको रिलेट करके भी बहुत सारा प्रॉब्लम भी फ्रेम किया जा सकता है। आगे हम प्रॉब्लम को डील करेंगे, लेकिन पहले और एक डेरिवेशन हम करेंगे। चलो देखो, नेक्स्ट हमारा सोलिनॉइड। एक्चुअली सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड और कुछ नहीं है, एक वायर लो, एक इंसुलेटिंग वायर लो। ओके, एक कंडक्टर है जिसके ऊपर एक कोटिंग है इंसुलेशन के लिए। उस वायर को हम क्या करेंगे, कोई भी एक होलो सिलेंडर के ऊपर कंटिन्यूअसली हम ऊंड करेंगे। जो चीज हमको मिलेगा इसको बोलते हैं सोलिनॉइड, और ये नाम रखे कौन है? एम्पियर इसको नाम दिए सोलिनॉइड। तो ये क्या है? एक होलो सिलेंडर है। देखो ये एक होलो सिलेंडर है। ये होलो सिलेंडर के ऊपर एक वायर को क्या किया गया है, ऐसे टर्न किया गया बार बार, इसको ऐसे ओके, बार बार इसको हम टर्न करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स फॉर यूनिट लेंथ मस्ट बी सेम इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। ओके, तो इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। चलो ये सोलिनॉइड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सोलिनॉइड को मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये सोलिनॉइड को अगर मैं पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसका मैं ले जाऊंगा तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये आपको डॉट 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 ऐसे मिलेगा आपको।
डॉट में आपको दिखा रहा हूं, ये वायर का जो हमारा इसके अंदर ये जो सर्कल है हमारा इंसुलेशन पार्ट है, और ये जो डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारा जो कंडक्टर है, अंदर वायर के अंदर जो कंडक्टर होता है और बाहर एक इंसुलेशन होता है। ओके, और ये डॉट मींस करंट इज कमिंग आउट, एंड यहां जो देखो मैं दिखाऊंगा आपको, यहां मैं क्रॉस लगाऊंगा। क्रॉस का मतलब क्या है? तो करंट इज एंटरिंग इनटू द बोर्ड। ओके, देखो यहां क्रॉस 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 लगाऊंगा, करंट इज एंटरिंग इनटू द बोर्ड, and each turn of this solenoid behaves like a single circular loop. ओके, तो इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? तो इस सोलिनॉइड का ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है। क्लियर? ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है। और कोई भी एक पॉइंट मैं चूज करूंगा, सपोज दिस इज माय पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। मेरे को यहां ये पी पॉइंट में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द लूप्स, ड्यू टू ऑल द लूप्स। क्लियर? तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो डेरिवेशन को ये जो एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स को। तो देखो कैसे क्या करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस जाएंगे, x डिस्टेंस में एक, देखो ये मेरा सेक्शन है और एक सेक्शन लेते हैं यहां। सो x में जाके dx लेंथ का हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। ओके, एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। अगर इफ n is the number of turns per unit length, then number of turns per dx length। तो dx लेंथ में कितना टर्न होगा? n is equal to number of turns in dx length will be equal to n times dx। यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स होगा तो dx लेंथ में कितना टर्न होगा? n dx टर्न होगा। सो वही n dx टर्न्स, दैट मींस n टर्न्स मिलके ये p पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे? तो ये मेरा देखो इधर एक्सप्रेशन है, मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैं इसको यूज करूंगा अभी। तो dB में इसको नाम दूंगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको 2 को कैंसिल कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं, देखो फिर से इसको पाई r स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से पाई हटा देते हैं, पाई को हटा देते हैं, और r देखो और क्या, 2 भी कैंसिल कर देते हैं, 2 भी कैंसिल कर देते हैं। तो हमको मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा देखो, सो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 आपको मिलेगा n i r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको आपको मैं इसीलिए दिखाया था ताकि मैं इसको इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया अभी। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 n is equal to number of turns, so this is my n dx। okay, I currently flowing is I, okay, r square, so it is the radius, you see radius of this solenoid, suppose this is r, okay, so number of turns n is equal to n dx, I r square divided by आपका हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, देखो अभी क्या करेंगे, ये जो x है,
तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको ऐसे कर दूंगा। तो एक्चुअली दिस थिकनेस मैं आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा लिया, लेकिन ये dx इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये dx बहुत छोटा है। सो सपोज ये थीटा में ये मेरा, ये देखो ये मेरा थीटा, ये मेरा अगर थीटा होगा तो मेरे को बताओ x इज इक्वल टू कितना होगा। तो x इज इक्वल टू, और टेन थीटा मेरे को बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो हाइट मेरा r डिवाइड बाई बेस मेरा x। तो ये बहुत छोटा है, ओके। तो क्या हो जाएगा, r डिवाइड बाई x। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cot थीटा। देखो x इज इक्वल टू, ये टेन थीटा नीचे आएगा, 1 डिवाइड बाई टेन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, हमको dx भी चाहिए और x भी चाहिए, तो dx इज इक्वल टू r कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, cot थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का फिर से d थीटा। तो इधर हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, r स्क्वायर, कीप इट अप, ओके, कीप इट एज इट इज। सो dx इज इक्वल टू माइनस, आगे रखते हैं, और r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये r क्यूब हो जाएगा। देखो r स्क्वायर है और एक r आ जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, देखो इधर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू r cot थीटा, तो हो जाएगा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ओके। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप कर सकते हो, ओके। अगर सिंपल लग रहा है तो छोटा सा रीअरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, तो माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये मेरा i, ये मेरा r क्यूब, कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई, यहां से देखो मैं r स्क्वायर कॉमन ले जाऊंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिलने वाला है। तो dB ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 2 माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 NIR क्यूब, NIR, देखो r तो कैंसिल हो जाएगा, एक r रहेगा इधर, एक r इधर रहेगा, ओके। नहीं देखो ये r स्क्वायर है, अगर ये r स्क्वायर कॉमन जाएगा तो पावर 3/2 है ना, तो ये पावर 3 हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये r स्क्वायर अगर कॉमन जाएगा तो पावर 3/2 है ना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर से, सो 3 रहेगा, r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 बाई कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा d थीटा। और कुछ है क्या, देखो म्यू नॉट बाई 2 NI साइन थीटा d थीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द small element of the solenoid which contain n dx turns, okay. So net magnetic field at P due to the whole solenoid, इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। तो dB इज इक्वल टू B 0 से B इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, I कांस्टेंट, इंटीग्रेशन
साइन थीटा डी थीटा। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा यहां तक एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा थीटा 1, और यहां से शुरू हो रहा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा 2। सो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, थीटा का वैल्यू देखो पूरा सोलिनॉइड को कवर करने के लिए थीटा 1 से थीटा 2 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। तो आपको मिलेगा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो थीटा 1 से थीटा 2, तो आपको मिलेगा देखो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये मेरा फाइनाइट लेंथ का एक सोलिनॉइड का कोई भी एक्सियल पोजीशन में विच इज नॉट एट द साइड, कोई भी साइड में नहीं होगा, थोड़े आर्बिट्ररी पॉइंट में होगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये जनरल एक्सप्रेशन है, साइड में होगा, ये सेंटर में होगा, यहां होगा, कोई भी पॉइंट के लिए ये मेरा एक्सप्रेशन होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपको क्या करूंगा, लेट केस 1, सो केस 1 अगर मैं कंसीडर करूंगा, केस 1 में क्या करूंगा, द लेंथ L of the solenoid, okay, if length of the solenoid is much greater than the radius of this solenoid, okay, ये सोलिनॉइड का जो रेडियस के कंपैरिजन में अगर इसका लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इट इज प्योरली ए रिलेटिव टर्म, एक छोटा सा सोलिनॉइड को भी हम आइडियल सोलिनॉइड मान सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द आइडियल कंडीशन, इसको आइडियल सोलिनॉइड बोलते हैं। अगर इसका लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं आइडियल सोलिनॉइड, और आइडियल सोलिनॉइड के केस में आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक जस्ट आउटसाइड द सोलिनॉइड बिकम्स जीरो, and the magnetic field that is developed inside the solenoid will be uniform at each and every position inside the magnet, it will be uniform. So इसको हम आइडियल सोलिनॉइड बोलते हैं, ओके, सो इसको बोलते हैं आइडियल सोलिनॉइड, इसको आइडियल सोलिनॉइड बोलते हैं। सो आइडियल सोलिनॉइड के लिए हमारा थीटा 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 आपका 0 हो जाएगा, और थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। ये देखो साइन थीटा 2 साइन 0 बिकम्स 1, और साइन 180 बिकम्स -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इनसाइड द सोलिनॉइड, लेकिन आउटसाइड 0 हो जाएगा, ओके, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड विल बी 0 एंड इनसाइड a uniform magnetic field will be generated, that's magnitude is equal to mu naught n I। क्लियर हो गया, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। देखो ये जो एक्सप्रेशन अभी मैंने निकाला, मैं फिर से जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपको पढ़ाऊंगा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ को भी यूज करके हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत 2-3 लाइन में ये डेरिवेशन हम कर सकते हैं। इसीलिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज वेरी इंपोर्टेंट लॉ, इट हैज गॉट लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर बायट-सावर्ट्स लॉ, बिकॉज बायट-सावर्ट्स लॉ इज अ लेंथी प्रोसेस, बट this Ampere's circuital law gives us the simplest way of finding magnetic field due to symmetric current carrying conductors, okay, so अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आपका सिमेट्रिक सिचुएशंस आएगा तो हमको इजीली हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे देगा, तो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये भी एक मेथड है, हम
B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हम निकाल पाए। और केस टू में हम देखेंगे if that this point is just at the end, suppose this is P is the observation point just at the one of the two ends, then here your theta, ये जो पॉइंट अगर इधर आ जाएगा तो थीटा 1 becomes 90 डिग्री एंड थीटा 2 becomes 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 becomes cos 0 becomes 1, नहीं ये थीटा 1 इज इक्वल टू, ये अगर इधर आ जाएगा, अगर ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 90 becomes 0 हो जाएगा, ये cos 0 becomes 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आपको मिलेगा। सो एक एंड में कोई भी सोलिनॉइड का कोई एंड में b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, लेकिन इसका जो अंदर अगर सेंट्रल पॉइंट कोई होगा तो म्यू नॉट एन आई होगा, ये सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायट-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो इसके रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम भी हम आगे सॉल्व कर चुके हैं, स्ट्रेट कंडक्टर को लेके और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का सेंटर को लेके। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे रिलेटेड टू दिस circular current carrying coil at the axial position or center, whatever it may be. Okay, thank you all, God bless you.